Hello everyone, I welcome you all over here on my channel to learn some basics of journalism and mass communication. I hope you all are doing well in this coronavirus times. Stay safe, stay happy. That is what I pray for everyone in this time. Today we are going to learn about introduction of MS PowerPoint. MS PowerPoint क्या होता है ये हम जानेंगे, इसके बेसिक्स के बारे में लर्न करेंगे. Microsoft PowerPoint is powerful presentation software developed by Microsoft. Microsoft कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया एक बहुत ही पावरफुल प्रेजेंटेशन का मीडियम है Microsoft PowerPoint. It is a standard component of company's Microsoft Office Suite software. Microsoft का जो एक पैकेज आता है ऑफिस सूट जिसको बोलते हैं Microsoft Office Suite, उस सॉफ्टवेयर का एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट है MS PowerPoint, जिसको कि बंडल किया जाता है MS Word, MS Excel और अदर ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स के साथ में. Now we are going to learn about the historical background of MS PowerPoint. हिस्ट्री क्या है हम जानेंगे ये कुछ बड़े पॉइंट्स के थ्रू मैंने मार्क किए हुए हैं ईयर वाइज, जिससे कि हमारे लिए इजी होगा हिस्ट्री को याद रखना कि कब क्या बड़ा चेंज आया MS PowerPoint में. 1984, Robert Gaskins invented and worked alone on Presenter, printing the two-page concept on his dot matrix printer before later being joined by Dennis Austin and then Tom Rudkin. रॉबर्ट गैस्किन्स जो थे उन्होंने सबसे पहले इस पे काम करना शुरू किया था और उन्होंने इसको प्रेजेंटर नाम दिया था और 2 पेज का कॉन्सेप्ट था उनका और उसमें उन्होंने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो चलते थे उसमें इन्होंने प्रेजेंटेशन को पहली बार उनको प्रिपेयर करके प्रिंट किया था, जिसके बाद उन्हें ज्वाइन किया डेनिस ऑस्टिन ने और फिर उनको इन दोनों को ज्वाइन किया टॉम रुडकिन ने. PowerPoint became the first venture capital investment ever made by Apple's strategic investment group. मार्च 1987 में PowerPoint जो था उसको एप्पल के स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट दिखाई. In April 1987, PowerPoint 1.0 for Mac was black and white only and was first available on 20th April 1987 on floppy disk, of course. 2 days after release, all 8,000 copies in stock had been sold. April 1987 में PowerPoint 1.0 जो कि मैक के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट था, वो फर्स्ट अवेलेबल किया गया था 20th अप्रैल 1987 को फ्लॉपी डिस्क पे और 2 दिन के अंदर इसकी ऑल 8,000 कॉपीज, जो सारी 8,000 कॉपीज डिजाइन की गई थी वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो गई, सारी कॉपीज बिक गई थी. In the same year, 1987, Microsoft bought PowerPoint for $14 million, equivalent to $13 million in 2017, with the original founding team becoming Microsoft's graphic business unit. 1987 में ही Microsoft ने PowerPoint को खरीद लिया $14 million में, जो 2017 के $30 million के इक्विवेलेंट था, विद द ओरिजिनल फाउंडिंग टीम, अपनी ओरिजिनल फाउंडिंग टीम के साथ में, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिक बिजनेस यूनिट के नाम से जाना गया. In the year 1988, PowerPoint 2.0 or Color PowerPoint was released to capitalize on hardware improvements. It boasted a massive 256 colors and also included graphic tools and bullet points.
माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2.0 रिलीज हुआ 1988 में, जिसको कलर पावर पॉइंट भी कहा गया, ताकि इस पे हार्डवेयर इम्प्रूवमेंट कैपिटलाइज किए जा सके। और ये चेंजेस लेकर के आया। लगभग 256 कलर्स थे इसमें, और इसमें ग्राफिक टूल्स के साथ साथ बुलेट पॉइंट्स भी अवेलेबल थे। In the year 1992, PowerPoint 3.0 added animations, sound and video effects, transitions and drawing tools, turning business people and teachers around the world into budding Martin Scorseses. PowerPoint 3.0 आया 1992 में, जिसमें एनिमेशंस, साउंड, वीडियो इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस और ड्राइंग टूल्स को ऐड किया गया, जिसको बिजनेस पीपल और टीचर्स ने बहुत ही एक तरीके से कह सकते हैं बहुत ही अप्रिशिएट किया और इसकी तरफ आकर्षित हुए वो लोग। In February 1992, the very first public use of a laptop to project video from PowerPoint took place on 25 February 1992 at Hotel Regina in the place Des Pyramids in Paris. Des Pyramids एक प्लेस थी पेरिस में, जहां एक होटल रेजिना में 25 फरवरी 1992 को सबसे पहला लैपटॉप में यूज करके पावर पॉइंट को दिखाया गया। प्रोजेक्ट वीडियो इसमें दिखाया गया था। 1997 Microsoft PowerPoint 8.0 for Windows 97 introduced AutoClipart and Clippy, the much maligned Office assistant, proving not all evolutions worked out. 1997 में PowerPoint 8.0 इंट्रोड्यूस हुआ, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था Windows 97 पे वर्क करने के लिए। इसमें ऑटो क्लिपार्ट का सिस्टम था और क्लिपी का सिस्टम अवेलेबल था। 2000 Startup adoption of PowerPoint was cemented in the dot-com bubble between when investors wanted 10 slide decks rather than 80-page business plans. Startup adoption शुरू हुआ PowerPoint का 2000 में, जब इन्वेस्टर्स ने 80 पेजेस के हेवी बिजनेस प्लान्स को रिजेक्ट करके 10 स्लाइड्स में बिजनेस प्लान को अप्रिशिएट किया, देखना और सुनना पसंद किया, उन्हें इम्प्लीमेंट करना चालू किया। In the year 2007, PowerPoint 12.0 introduced SmartArt to effectively kill off ClipArt. ClipArt की जगह पे SmartArt यूज की गई PowerPoint 12.0 में in the year 2007. 2009, Prezi was launched to challenge PowerPoint with an alternative non-linear approach. Many users loved the new concept, but others reported audience suffering from motion sickness from too much animation. Prezi को लॉन्च किया गया था 2009 में PowerPoint को चैलेंज करने के लिए एक नॉन लीनियर अप्रोच के तहत, मगर बहुत सारे यूजर्स ने उसको अप्रिशिएट किया क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट था। मगर जो पुराने यूजर्स थे पावर पॉइंट के, उन्होंने उसको मोशन सिकनेस की वजह से, क्योंकि उसमें बहुत सारे एनिमेशंस एडेड थे, उन्होंने मोशन सिकनेस की वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया। 2010, PowerPoint skipped over 13.0 for superstitious reasons. 13.0 PowerPoint को स्किप किया गया 2010 में कुछ सुपरस्टिशियस रीजंस की वजह से। 2014, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप Glisser launched to live share PowerPoint slides to audience phones and incorporated live audience response and integrated social media feeds.
2014 में टेक्नोलॉजिकली स्टार्टअप ग्लिसर ने लॉन्च किया लाइव शेयर पावर पॉइंट स्लाइड्स को करना टू ऑडियंस के फोन्स में, लोगों के फोन में, और उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया लाइव ऑडियंस को रिस्पॉन्स और सोशल मीडिया फीडबैक्स के लिए। 2016 PowerPoint announced artificial intelligence elements. Designer helps users automate the creation of slides and presentations. AI marks a significant evolution in PowerPoint and is heralded as new age of feature apps. PowerPoint ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एलिमेंट्स को ऐड किया अपने में इन द ईयर 2016। डिजाइनर के नाम से हेल्प्स यूजर टू ऑटोमेट द क्रिएशन ऑफ स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन ऑटो क्रिएट करने के लिए प्रेजेंटेशन और स्लाइड्स को इसको ऐड किया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्क्स सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन, बहुत ही एक बड़े एवोल्यूशन की तरह से इसको देखा गया, जहां पे इसे न्यू एज ऑफ ऐप फीचर्स भी कहा गया। Whereas in 2017 PowerPoint ने अपना 30th बर्थडे सेलिब्रेट किया। Now let us learn the usage of Microsoft PowerPoint. PowerPoint is used for various things. Some of them are बिजनेस प्रेजेंटेशंस देने के लिए PowerPoint का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एजुकेशनल पर्पस में टीचर्स के पढ़ाने के लिए, लाइक आई यूज्ड टू डू इट, और स्टूडेंट्स के लिए अपनी प्रेजेंटेशन या प्रोजेक्ट फाइल्स प्रिपेयर करने के लिए यूज में आता है। गवर्नेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी पर्पस, गवर्नमेंट के एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी के पर्पस के लिए भी PowerPoint प्रेजेंटेशंस को यूज किया जा सकता है, जहाँ पे कई जगह पे किसी प्रोग्राम में, किसी इवेंट में PowerPoint प्रेजेंटेशंस के थ्रू गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को इलैबोरेट कर सकती है, डिस्कस कर सकती है लोगों के साथ में। प्रिपेयरिंग CV और रिज्यूमेज एक्सेट्रा, बहुत सारे अदर यूजेज हैं PowerPoint के, जिसमें से ये कुछ सिमिलर थे, जिसमें से एक प्रिपेयरिंग CV और रिज्यूमे है, जो जॉब सीकिंग स्टूडेंट्स के लिए या स्टूडेंट्स नहीं, जॉब सीकिंग यूथ के लिए अपना CV, करिकुलम वाइटे और रिज्यूमे प्रिपेयर करने के काम आ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ MS PowerPoint. The presentations are comprised of slides होती हैं प्रेजेंटेशन में, which may contain text contain कर सकती हैं, images and other media such as audio clips and video clips. Sound effects and animated transitions can also be included to add extra appeal to presentation. Animation वाले जो transitions होते हैं उनको या फिर साउंड इफेक्ट्स को भी यूज किया जा सकता है PowerPoint प्रेजेंटेशन में, ताकि इसमें एक्स्ट्रा अपील, एक्स्ट्रा अट्रैक्टिवनेस को ऐड किया जा सके। मोस्ट PowerPoint presentations are created from a template. किसी टेम्पलेट के थ्रू ही क्रिएट किए जाते हैं इन जनरल PowerPoint presentation, which includes a background color और image. बैकग्राउंड कलर या इमेज होता है इसमें, a standard फॉन्ट होता है, एक फॉन्ट नॉर्मल यूज किया जाता है, एंड अ चॉइस ऑफ सेवरल स्लाइड लेआउट्स, कई सारे लेआउट्स की स्लाइड का हमारे पास चॉइस होता है कि हम कौन सा लेआउट यूज करना चाहते हैं अपनी PowerPoint स्लाइड के लिए। Changes to the slide can be saved to a master slide. मास्टर स्लाइड के थ्रू चेंजेस जो भी PowerPoint प्रेजेंटेशन में करने होते हैं हम वो कर सकते हैं, which stores the main slide theme in the presentation. जो कि मेन स्लाइड थीम प्रेजेंटेशन होती है उसके अकॉर्डिंग होता है प्रेजेंटेशन में चेंज। When the changes are made to master slide, such as choosing a new background image, the changes are propagated to other slides as well. जब हम मास्टर स्लाइड में कोई भी चेंज करते हैं, या फॉर एग्जांपल नया बैकग्राउंड चेंज करना या कुछ भी टेक्स्ट चेंज करना, तो उस तरीके से वो चेंज बाकी के अदर स्लाइड्स में भी आता है। दिस कीप्स अ यूनिफॉर्म लुक
among all the slides. ये एक यूनिफॉर्म लुक मतलब एक सिमिलर लुक क्रिएट करता है किसी भी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में. I hope this video might have made you clear the basics of MS PowerPoint and its historical background, usage and working as well. Thank you so much for watching it. Stay happy, stay safe.